Hello everyone. Today in this video, in the last video we have discussed about KMT. If you haven't watched that, go watch it. Alright. सबसे पहले I need to tell you before going ahead, and I need to tell you some unit conversion of pressure that might come in the form of MCQ. So why not to give it a try? Alright. So 1 atm. Atm is the unit of pressure. Torr is also a unit of pressure. mmFHg is also a unit of pressure. PSI is also a unit of pressure. So let's see. 1 atm is equal to 760 torr. Alright. 1 atm is equal to 760 mm of Hg. Right? Then again, 1 atm is equal to 76 centimeter. Right? 1 atm is equal to 14.7 psi. psi को pound square inches कहते हैं, जो कि हमारे पास pressure के लिए यूज होता है. So these were the units. Now I want you to do the conversion of these units. Let's do it. It's very easy. Alright? Conversion. Basically, the question can be asked 2 atm into torr. How are you gonna do that? Dekho. We have to write 2 atm in the numerator, multiply by the value of 760. We know that 1 torr is equal, 1 atm is equal to, and then डिनोमिनेटर में हमारे पास वही आना है जो हमने निकालना है. तो ये कट हो गया. देन व्हाट वी गॉट 2 मल्टीप्लाई बाय 760. तो फिर हमारे पास आंसर वुड बी 1520. This is gonna be the answer. Alright. Then we have another question that 600 psi into atom है ये. ठीक है. Now अब आप atom का सोच सकते हैं कि atom के लिए we use atm. Right? 600 psi multiply by 1 atm. ठीक है. और हमने कहा था ये इसकी वैल्यू gonna look keep down, तो 14.57 SPI या PSI. I'm so sorry अगर मैंने गलत किया, इससे कर दिया. And then 600 divided by 17.7. Whatever answer we got, you can calculate. Alright. So now this was not a part of this topic, but I want you to do it, right? Because this might come in the form of MCQs. Alright. Now we're going to do caustic kinetic क्या बोलते हैं, kinetic equation of gas. ठीक है. ये बहुत important topic है, and basically it explain this topic explain the pressure of the gas. हमें pressure बताता है gas का, pressure of gas. Alright, now we are going to look at the equation of it. This equation tells the pressure PV is equal to 1/3 mNc square bar. Alright, so let's discord this. The P here stands for pressure, ठीक है. V stands for volume, and 1/3 is basically used for gas that is in 3 direction या फिर 3 dimensional दो होती है.
M is used for the mass of the gas or the molecule of the gases. N is basically the number of moles, the number of molecule. ये mass है, ये number of moles है. वैसे हमने number of mole N से छोटे N से, but here in this equation. And C square. C square हमारे पास यहाँ पे कोई लाइट को जो हम शो करते हैं वो फिजिक्स में करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट को करते हैं, लेकिन when it comes to chemistry तो हम वेलोसिटी से करते हैं. ठीक है, so this is the square of the velocity. alright, ये हमारे पास वेलोसिटी है जिसको हम केमिस्ट्री में C से शो करते हैं. And hence I put bar over here, that mean square velocity, so that we're gonna understand what it is. alright, सबसे पहले let's understand something जो कि conceptual है. alright, so for example, ये तो equation हो गई हमारे पास. for example, अभी now I'm going to tell you something that is going to, alright, एक कंटेनर है, यहाँ पे बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं. ठीक है, right, so when these molecule will strike to each other, there will be no collision. हमें पता है जब दो चीज़ें टकराती हैं तो उनके बीच में टकराव होता है जिसकी वजह से कुछ ना कुछ पैदा होता है, प्रेशर पैदा होता है. तो but here in this case, when these two molecules will be collide with each other, there will be no collision क्योंकि इनके बीच में elasticity होगी और गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है. बट लेकिन हमने ये भी बहुत सुना है कि केमिस्ट्री के अंदर कि जब गैसेस के मॉलिक्यूल्स टकराते हैं तो उनका वॉल्यूम बढ़ता है और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से उनके अंदर प्रेशर बढ़ता है. ठीक है, वॉल्यूम बढ़ता है तो हमारे पास प्रेशर जो होता है वो लेस हो जाता है, या फिर वॉल्यूम लेस होता है किसी कंटेनर के अंदर तो हमारे पास कोलिजन ज़्यादा होती है. वो मैं आपको बताती हूँ वो कैसे होता है. लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में देयर विल बी नो कोलिजन. बट व्हेन दीज मॉलिक्यूल स्ट्राइक टू द वॉल ऑफ द कंटेनर तब प्रेशर बढ़ता है. ये वॉल से करेंगे ना तब बढ़ेगा. ऑलराइट, कभी भी एक दूसरे से टकराएंगे देयर विल बी नो प्रेशर. मॉलिक्यूल से टकराने के लिए नो प्रेशर, पर व्हेन दीज मॉलिक्यूल आर गोना स्ट्राइक विद द कंटेनर वॉल तब होगा. ऑलराइट, I hope you have gotten something. alright, now I'm gonna give you the example of two elements. ठीक है, जिसकी मदद से you can understand. Consider over here क्या मैं बहुत गंदा पढ़ा रही हूँ, गंदा क्या नहीं. alright, so consider over here H2. अब ये हमारे पास हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है जिसका मास इज वेरी लो है. ठीक है, आप कंपेयर कर लें O2 से जो हमारे पास 32 निकलेगा. समहाउ मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 2 से तो ये निकलेगा और इसको तो 2 ही रहेगा, तो हमें डिस्कस करने की जरूरत है. राइट, मास इज लो. ऑलराइट, व्हेन द मास इज लो, यहाँ पे लो है मास इज लो, तो कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स वुड बी हायर. भाई मास कम है किसी चीज़ के अंदर तो मास कम है तो कोलिजन ज़्यादा होगा वॉल से. यस एग्जैक्टली, एंड द वेलोसिटी वुड बी हाई. और जब कोलिजन ज़्यादा होता है ना किसी चीज़ के अंदर तो हमेशा याद रखिएगा कोलिजन की वजह से वो चीज़ प्रेशराइज हो जाती है. और वैसे ही हमें पता है मास लेस है इसका तो कोलिजन ज़्यादा होगा, टकराव ज़्यादा होगा तो ये प्रेशर बढ़ेगा. ऑलराइट, this is what I am trying to say, that if the gas has low mass the collision will be high and velocity pressure would be high, but volume is inversely proportional to collisions. ठीक है, number of collision. now when it comes to the oxygen, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इसका mass ज़्यादा है. ठीक है, number of collision would be less, hence the pressure would be less, and what else, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो द कोलिजन विल बी लेस. भाई ज़्यादा वॉल्यूम है, बड़ा है
टाइम लगेगा कंटेनर से टकराने में, फिर किसी और से टकराने में, तो प्रेशर देर से होगा, मतलब प्रेशर कम होगा इसके अंदर, देर से नहीं होगा। ऑलराइट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, हम थोड़ा वेलोसिटी के बारे में अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जो कि हमें स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी बताया मैंने एक्चुअली। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी कि ये स्क्वायर आता क्यों है, हम लगाते क्यों है स्क्वायर, और ये बेसिकली मीन फाइंड करने के लिए होता है। मैथमेटिक्स में भी हैव इन आवर लोअर क्लासेस, बट डोंट वरी, हम अभी भी कर लेते हैं अगर किसी को याद नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज डिफरेंट। ये देखो मैं आपको बताती हूँ, ये कंटेनर है, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी। मीन्स n1 की वेलोसिटी वुड बी चेंज होगी n2 से। सबकी velocity of the gaseous molecule is different, not same, due to the striking of one molecules to each other. कैसे होगा? जब ये दोनों स्ट्राइक होंगे ना, मैंने आपको बताया था, जब ये दोनों स्ट्राइक होंगे, सबसे पहले तो आपको याद रखना है, तो वेलोसिटी वुड बी एवरी की जो वेलोसिटी होगी दैट वुड बी डिफरेंट। क्यों? क्योंकि व्हेन दे गोना स्ट्राइक विद ईच अदर, so the kinetic energy would be transferring. So like वहाँ पे I'm so sorry, when the kinetic energy is transferred to another molecule, तो of course उसकी velocity भी change होगी। ठीक है, ये दोनों collision होती हैं हमारे पास, तो हमारे पास collision होने की वजह से there will be the transfer of kinetic energy, क्योंकि जब particle move करता है तो उसके अंदर kinetic energy आती है। हम कहते हैं ना, energy neither be nor be destroyed, energy cannot be destroyed but can convert its form to another or transfer it. तो यहाँ पे हम kinetic energy would be transferring, and ये n1 है, n2 है, n3 है, n4 है, बार लगा हुआ था हमारे पास वेलोसिटी के ऊपर, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द मीन। सबसे पहले हम एवरेज फाइंड करेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू n1 c1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस n2 c2 स्क्वायर प्लस n3 c3 स्क्वायर। अभी कंसिडर कर लें तीन ही मॉलिक्यूल्स नहीं है, वरना ज़्यादा हो जाएगा हमारे पास। सो डिवाइडेड बाय 3, अगर यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स थे तो डिवाइडेड बाय 4 हो जाता। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी फाइंड एवरेज। ठीक है, मीन के अंदर बेसिकली एड ऑन, बट यहाँ पे हम एवरेज करते हैं। तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर अबाउट द इक्वेशन ऑफ गैस, but in the next video I'll make sure that we are covering the gases law and some introduction of the effect of atmospheric temperature on the weather and kind of thing. Atmospheric pressure से याद आया कि we have devices, basically we have two devices. Number one is barometer, that is for the calculation of the atmospheric pressure. ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हम बैरोमीटर यूज़ करते हैं, एंड मानोमीटर और पता नहीं क्या उसकी प्रोनाउंसिएशन, मैनोमीटर आई यूज टू से, आई दिस इट। मैनोमीटर इज़ यूज फॉर लाइक, वो हम प्रेशर को ही कैलकुलेट करते हैं, बट द प्रेशर ऑफ द कंटेनर व्हेन द गैसेस आर इन कंटेनर और लाइक एक स्पेसिफिक जगह पे होती हैं, तो वी डू कैलकुलेट the pressure there with that, and it is in the shape of U kind of shape में होता है। ये यहाँ पे इस तरह से पाइप लगा हुआ होता है,
जिसको हम ब्लू कर करके हम हवा देते हैं, तो एक साइड से फॉर एग्जांपल वी हैव वाटर इनसाइड, तो यहाँ से पानी ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशन इन द प्रेशर इट, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर हुआ भी तो आई एम गोना मेक अनदर वीडियो फॉर दैट, बट आई फील लाइक yeah, we're done with this. And in the previous video हमने yeah, we did this topic and this was KMT. Yeah, it was my favorite. Alright, I hope you got it. Thank you so much.